Today we will discuss some questions from previous year question paper that is held in July 2018 UGC NET English Literature paper 2. So welcome you all at my channel Study at Home with Amrita Som. Friends, here we have our first question. Which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who, after a shipwreck, is marooned on a desert island? And the right answer is Enoch Arden. Our next question is Anthony Burgess' last novel, published in 1993, is called A Dead Man in Deptford. Who is the central character to whom the title refers to? So, this title, A Dead Man in Deptford, ये रेफर किया गया है क्रिस्टोफर मार्लो को. And so, the Christopher Marlowe is the right answer for this question. Now, our next question. In Memorial Verses, Matthew Arnold pays tribute to three great poets. Who are they? मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने मेमोरियल वर्सेस में थ्री पोएट्स को ट्रिब्यूट किया है, मतलब उनको एक तरह से ये इसमें सम्मानित किया है. तो द थ्री पोएट्स आर गोथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फ्रेज Uti pectora poesis from Horace Art of Poetry mean? तो इस फ्रेज का मतलब होता है as in painting so in poetry. ये होरेस ने आर्ट ऑफ पोएट्री में यूज किया है. Now we will see the question. Who among the following English playwrights wrote screenplays on novels such as Marcel Proust in Search of Lost Time, John Fowles' French Lieutenant's Women, and Margaret Atwood's Handmaid's Tale? And the playwright is Harold Pinter. Harold Pinter is the right answer. Our next question. The year in English literary history between 1649 and 1660 are known as the Commonwealth period. जो इंग्लिश हिस्ट्री का जो पीरियड है बिटवीन 1649 से लेके 1660 का, उसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं. इन आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स विच गेम ऑफर स्वामी द बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेन्स एंड प्रेशर ऑफ डिसएग्रीएबल सर्कमस्टांसेस? तो राइट आंसर इज क्रिकेट. क्रिकेट वॉज द गेम विच वॉज ऑफर्ड टू स्वामी फॉर release her strain and pressure. Now, the question. William Blake expressed the importance of the particular when he said that to generalize is to be dash, to particularize is the alone destination of merit. Fill in the blanks. तो यहाँ पे आएगा an idiot. To generalize is to be an idiot. To particularize is the alone destination of merit. This is the right answer. Which of the following was not a dialect of Old English? As we all know, Old English जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, इसको चौसर ने इन्वेंट किया. इससे पहले 4 डायलेक्ट यूज होते थे ओल्ड इंग्लिश में, जिसमें था एक था नॉर्दम्बरियम, सदर्नबरियम एंड कैंटिस और एक मर्शियन. एंड जो डायलेक्ट नहीं था ओल्ड इंग्लिश में वो क्या था? वो था आयरिश. आयरिश डायलेक्ट नहीं था ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स में. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Letton Starches Eminent Victorians carries biographical sketches of writers and public figures. Identify the list below that correctly mentions those eminent Victorians. So here is the list. The Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold and General Gordon was the eminent Victorians. Our next question. Choose the correct chronological order. हमें ये जो वर्क एंड राइटर्स जो दिए हुए हैं इनको chronological order में
देखना है कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइट है, मीन्स कौन सा वाला पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, एंड देन उसके बाद। यहाँ हमें ये नहीं देखना है कि इस वाले राइटर का फर्स्ट वर्क कौन सा, हमें ये देखना है कि सपोज ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर से पहले कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस ही इन्वेंट की थी, या इस तरह से हमें देखना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं तो अवर राइट आंसर इज विलियम कैक्सटन प्रिंट्स द फर्स्ट इंग्लिश बुक टू टेल्स मिसैलिनी and Song and Sonnets, William Shakespeare's first folio, John Milton's Areopagitica. So these are the right chronological order. Now the next question, who among the following is the author of Account of the Augustan Age in England 1759? तो इसमें बताया कि ऑगस्टन एज का इंग्लैंड में 1759 में कौन सा वाला ऑथर है, मीन्स हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड। तो ऑगस्टन एज के जो राइटर हैं वो हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड कार्वेंटिस पब्लिश हिज नॉवेल डॉन क्विक्सोट? तो डॉन क्विक्सोट की थी कार्वेंटिस ने 2 पार्ट्स में इसने पब्लिश किया था इसको। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एपोनियम्स saints of Dryden's song for Saint Cecilia's Day is incorrect. Identify that statement. It means ये जो 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये सेंट सिसिलिया के रिलेशन में ठीक है, एंड जो ये वाली है सेकेंड वाला, सेंट सिसिलिया वॉज एन आर्मेनियन डिवोटी ऑफ क्रिश्चियन फेथ, ये गलत है। तो जैसे आपको पता है कि नेट में हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो हमें जब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें यही चीजें देखनी होती हैं कि सपोज इस बार पूछा है कि इसका ड्राइडन का सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे में ये पूछा है कि इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कौन सी इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो गया दिस वन। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कई बार हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके रिलेशन में सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें इन तीनों को लर्न करना है, इन तीनों को हमें याद रखना है। इसीलिए हम ऑप्शन की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं जिससे कि इस बार पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब कॉन्सेप्ट रिपीट हो तो ये पूछ सकता है कि करेक्ट वन कौन सा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑन माइकल रॉबर्ट्स फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्सेस 1936 इज नॉट ट्रू? ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ये पूछा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, लेकिन ये भी पूछ सकते थे कि माइकल रॉबर्ट की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मतलब इसमें पूछा है ट्रू नहीं है, तो मीन्स इनकरेक्ट वाली तो ये है, द कलेक्शन बिगिंस विद द पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्रिज, तो ये गलत है। कि माइकल रॉबर्ट्स का जो फेवर बुक ऑफ मॉडर्न वर्सेस है, इसमें इसका जो कलेक्शन है वो जो कलेक्शन की जो पोएम्स है वो रॉबर्ट ब्रिज की पोएम से स्टार्ट नहीं हुई थी, बट जो राइट इसके रिलेशन में जो स्टेटमेंट है वो भी हमें लर्न करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं तो मे बी ये क्वेश्चन फिर से दूसरी किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो आई एम ending my presentation with this note. Please, if you like my efforts, please give me thumbs up and mention